Hello students, welcome to all of you to this easy English classes. Today's class is for class 10 students, Board of Secondary Education Odisha. The lesson is types of a sentence, chapter 2 from your English grammar book. So, in this lesson, we will discuss the lessons, the topic, then we'll do the activities and the test paper exercises. So first, how many types of a sentence are there in English grammar? So we all know there are three types of a sentence: simple sentence, compound sentence, and complex sentence. ଏବେ ଆମେ simple sentence ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା. What is simple sentence? A sentence that has one noun and a verb is called a simple sentence. ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତା ଥିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ, a sentence that has only a noun and a finite verb is called a simple sentence. ତେବେ what is finite verb? finite verb କ'ଣ? ଯଦି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବା ତେବେ ଅତି କମରେ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭର୍ବ ଆବଶ୍ୟକ. ଯେପରିକି ଆଇ ଗୋ, এই ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆଇ ହେଉଛି ନାଉନ୍ ବା ସବଜେକ୍ଟ, ଗୋ ହେଉଛି ଭର୍ବ. ଯେହେତୁ এই ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭର୍ବ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ କହିଥାଉ. କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ନିହାତି ଏକରୁ ଅଧିକ ଭର୍ବ ଥିବ, এই ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖ, ସୀତା ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର. এই ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ହ୍ୟାଜ୍, ବିନ୍ ଏବଂ ରାଇଟିଂ ତିନୋଟି ଭର୍ବ ରହୁଛି. ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଫାଇନାଇଟ୍ କିଏ ନା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ କହିବା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ ଅଟେ. ସେମିତି ସୀତା ରାଇଟ୍ସ ଏ ଲେଟର, এই ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଇଏ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, ଇଏ ହେଉଛି ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ. ଯଦି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଦରକାର ଏବଂ ଗୋଟେ ଭର୍ବ ଦରକାର. ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭର୍ବ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭର୍ବ ଥିବ, ଯଦି ସେଇ ଗୋଟିକ ହିଁ ହେଉଛି ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ, ଏବଂ ତା ଯଦି ଅଧିକ ଥିବ, ଏକରୁ ଅଧିକ ଭର୍ବ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମଟିକୁ କହିବା ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କହିବା ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ. ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବର କାମ ହେଉଛି ଇଟ୍ କ୍ୟାରିଜ୍ ଦ ଟେନ୍ସ. ଏହା ହିଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଟେନ୍ସକୁ ଏହି ବହନ କରିଥାଏ. ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କାହାକୁ କହିବା. ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଲଜ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ. ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ. ତ ଏଠି ହାଜ୍ ହେଲା ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ, ବିନ୍ ଆଉ ରାଇଟିଂ ହେଲେ ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ବ. ଏବେ এই ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟିକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି. ଏ ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ 4 types. ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ତିନିରେ ହେଉଛି ଇମ୍ପରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଚାରିରେ ହେଉଛି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ. ଏବେ ଆମେ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା. ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ? ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଥାଉ. ଏହା ଯେକୌଣସି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତା ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଥାଉ, ଅସ୍ତିବାଚକ ବା ନାସ୍ତିବାଚକ ହେଇଥାଉ, ଏହା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଥାଉ. ତେବେ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି, ଏହି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ. ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ଓପିନିଅନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି. ଓପିନିଅନ୍ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ?
मनकर कटक इज ऑन द महानदी यह गोटे फैक्ट। द कुको सिंग्स इन स्प्रिंग यह मध्य गोटे फैक्ट अटे, तथ्य अटे। फैक्ट मीन्स तथ्य। द स्टोरी अपियर्स वेरी इंटरेस्टिंग बा गल्पटी खूब आग्रहपूर्ण बा इंटरेस्टिंग होइछि लगुछि। तेणु यह होछि गोटे ओपिनियन मतामत। मते हुएत भल लगुछि अन्य मानक भी भल लागु थाई न पारे, तेणु मोर ओपिनियन। तेणु इठी इंटरेस्टिंग द स्टोरी अपियर्स वेरी इंटरेस्टिंग यह होछि गोटे ओपिनियन। ही इज गोइंग टू सेल हिज कार आफ्टर होली यह गोटे इंटेंशन। इंटेंशन अर्थ तांकर उद्देश्य बा इच्छा। तेणु यही वाक्य गुड़िक आम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कही था। जेकोसी वाक्य तुम्हें कह यह अस्थिवाचक होता कि नास्ति। नास्ति कहले नॉट थी। रमेश इज नॉट माय बेस्ट फ्रेंड, हरि इज माय बेस्ट फ्रेंड, कटक इज ऑन द महानदी इत्यादि ये गुड़िक सब डिक्लेरेटिव सेंटेंस रो गोटे गोटे उदाहरण। ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस को गढ़िया पई 5टी पैटर्न थाए। देयर आर 5 पैटर्न्स ऑफ ए सिंपल सेंटेंस। से गुड़िक हेले एस भी, एस भी ओ, एस भी ओ ओ, एस भी सी, एस भी ओ सी। प्रथम आम देखा से पैटर्न गुड़िक कौन कौन आलोचना करिया उदाहरण देकर। प्रथम आसूची एस भी। एस भी कहले कौन ना एस फॉर सब्जेक्ट, भी फॉर वर्ब। बा एस भी कहले आई गो। गोटे आम टिके आगु आलोचना करते गोटे सिंपल सेंटेंस गढ़ा को हेले अति कम रे आमको गोटे सब्जेक्ट एवं गोटे वर्ब रो आवश्यकता रही। एटा ठीक से एस भी हेले गोटे सेंटेंस हैला, कारण एथि गोटे सब्जेक्ट रोची गोटे वर्ब रोची। आई गो एस भी। जेपर कि द विंड ब्लोज, द विंड है सब्जेक्ट, ब्लोज है प्रेडिकेट। एबे आउ गोटे पैटर्न को जीवा एस भी ओ, अर्थात सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सीता राइट्स ए लेटर। सीता ला सब्जेक्ट, वर्ब वाला राइट्स, ए लेटर ला ऑब्जेक्ट। परवर्ती पैटर्न को जीवा एस भी ओ ओ। एथिरे दुईटी ऑब्जेक्ट रही। मिस्टर दास टीचेस अस इंग्लिश। ये मिस्टर दास होती सब्जेक्ट, टीचेस है वर्ब, अस है ऑब्जेक्ट, इंग्लिश है आउ गोटे ऑब्जेक्ट। ये दुईटी ऑब्जेक्ट भीतर तफात कौन? गोटे है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आउ गोटे है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होची इंग्लिश, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होची अस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होची वर्ब पाखरे थाए। तेणु आम यही दुईटी जाक ऑब्जेक्टर स्थान बदलाई दे पारिबा। आम एमती भाव कर मिस्टर दास टीचेस इंग्लिश टू अस। ये अस टाक डाण पटक आनले आम पाखे टू टी लगेबा। ये हम मिस्टर दास टीचेस इंग्लिश टू अस कि मिस्टर दास टीचेस अस इंग्लिश। तार परवर्ती पैटर्न होची एस भी सी। एस भी सी कहले कौन हम ना गोटे है सब्जेक्ट, गोटे है वर्ब आ गोटे है कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंटर आवश्यकता कहीं रही? बेले बेले एठी आम देखले सब्जेक्ट आउ वर्ब रे सेंटेंस कंप्लीट होछि, किंतु एठी मध्य सब्जेक्ट रही एवं वर्ब रही। वर्ब रही इज, सब्जेक्ट रही मिस्टर दास। ए सब्जेक्ट आउ वर्ब रही थाई मध्य से सेंटेंस टी संपूर्ण हो पारु नाही। तेणु मिस्टर दास इज, एस भी कहले मिस्टर दास इज, सेंटेंस टी कंप्लीट हो नाही बा पूर्ण आसु नाही। से गोटे कम्प्लीमेंट आवश्यकता रहा। यह गोटे कम्प्लीमेंट।
तेणु मिस्टर दास इज ए टीचर कहले एस भी सी एठार ए टीचर होची मिस्टर दास इज ए डॉक्टर मिस्टर दास इज माय ब्रदर ये सब होचंती कॉम्प्लीमेंट तेणु ये भाव में यह गोटे पैटर्न अटे एस भी सी एबे परवर्ती पैटर्न को जीवा देख एस भी ओ सी एटर दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट एटी एस भी ओ पूर्व पृष्ठ में आलोचना करते एस भी ओ अर्थ सीता राइट्स ए लेटर तीनोटी थिला वाक्यटी संपूर्ण थिला बर्तमान यही वाक्य जदि हम एस भी ओ को देखा दे इलेक्टेड हिम कौन इलेक्ट कले गोटे क्वेश्चन आसूची तो ये सेंटेंस संपूर्ण हो पारना दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट कहले संपूर्ण आसूची अर्थटी तेणु एस भी ओ सी सी र आवश्यकता रही तापर जीवा आम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बा प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बा इंटरोगेटिव सेंटेंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स प्रथम टी डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन आउ येस नो टाइप क्वेश्चन डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन रो एग्जांपल देख जिते गुड़िए प्रश्न आम पचारे इंग्राजी व्हाट हु व्हिच वेयर लगे से गुड़िक डब्ल्यूएच टाइप रो क्वेश्चन व्हाट इज योर नेम हु आर यू वेयर इज योर विलेज इत्यादि इत्यादि एगुड़िकर डाहाण पटे थाए प्रश्नवाची चिन्ह थाए एगुड़िक आम कहू इंटरोगेटिव सेंटेंस आउ गोटे इंटरोगेटिव सेंटेंस है येस नो टाइप रो क्वेश्चन जो थे कि ऑक्सिलरी वर्ब टी मूल को आसी थाए फॉर एग्जांपल आर यू ए टीचर इज योर फादर ए डॉक्टर इत्यादि तेणु ए गुड़िक सहित आम अभ्यस्त एथिरे बुझिया पे किसी असुविधा नहीं या पर आम जीवा आउ गोटे सेंटेंस जोटा कि हम प्रथम कहते सिंपल सेंटेंस को डिवाइड कराई चारि प्रकार गोटे है डिक्लेरेटिव गोटे है इंटरोगेटिव तापर इंपरेटिव तापर एक्सक्लेमेटरी एबे आम तृतीय टी को जीवा इंपरेटिव सेंटेंस गुड़िक होची आदेश अनुरोध प्रार्थना इत्यादि को बुझाउथिबा वाक्य बेले बेले आम अन्य को उपदेश दे था अन्य को आदेश दे था अन्य को कमांड दे था विश कर जपरिक एडवाइस ये वाक्य को चिन्हवाई हेले मुझे तुम सरल उपाय बतई दूसरी ये वाक्य मानक मूल भर्व थाए मन रख मूल भर्व थी जेकोसी गोटे भर्व जमीक स्टैंड अप ओपन योर बुक गो टू योर सीट इत्यादि यही वाक्य को तुम मन पकड़े जापर इंपरेटिव सेंटेंस ये वाक्य गुड़िक अटंती एगुड़ी आम भाग भाग करचे किसी एडवाइस अच्छा रेस्पेक्ट योर टीचर किसी रिक्वेस्ट अच्छा प्लीज लगी भी हम प्लीज गिव मी योर पेन कमांड थी मार्च ऑन सोल्जर्स वही अच्छी सजेशन लेट्स गो ऑन ए पिकनिक प्रेयर थी हैव ए मर्सी अस तापरे वार्निंग रही जपरिक बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स
इंस्ट्रक्शन मध्य रही डोंट राइट योर नेम ऑन द फ्रंट पेज किंबा राइट योर नेम ऑन द फ्रंट पेज हो पार इंस्ट्रक्शन एटा ऑर्डर go to your seat wish have a nice day इत्यादि इत्यादि मु जेमती कहली ए वाक्य को चिन्ह पे सहज मूल रे भर थिबो किंबा लेट्स थिबो किंबा हाव ये समस्त भी वर्ब बी आवर गोटे वर्ब डोंट भी वर्ब गो हैव प्लीज थिबो लेट्स थिबो ए गुडी को देखिकरी आमे माने जानि परिबा ए आउची इंपरेटिव सेंटेंस रा उदाहरण बोली परवर्ती वीडियो रे हम आउरी मध्ये एक्सरसाइज रे हम भल भाव रे बुझी परिबा तो देखिबा शेषटी होची एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चारिटी रु हम प्रथमटी गला डिक्लेरेटिव नेक्स्ट गला इंटरोगेटिव तापर गला imperative एवं सेवा शेषटी आसला exclamatory sentence. What is exclamatory sentence? It is an expression of a sudden feeling or surprise of surprise किछि हमें आश्चर्य जिनस देखिले जो फीलिंग्स टा हमर आसे ताकू हमें exclamatory sentence भाबरे प्रकाश करि थाउ उदाहरण स्वरूप how stupid he is What a stupid boy he is मन रख एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चिन्ह को हेले डाहाण पटे ए विस्मय सूचक चिन्हटी थिबो एवं सेंटेंस टी हाउ किंबा व्हाट रो आरंभ होइतिबो आमे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिक्लेरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रे परिवर्तन चेंज किपरि करा जिवो वर्तमान में सिखिबा मानकर प्रथम गोटे सेंटेंस दिया ही इज वेरी स्टूपिड याकू एवं आउ गोटे सेंटेंस अच्छी ही इज ए वेरी स्टूपिड बॉय आम मूल कहीचे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दुई प्रकार गोटे हाउ रु आरंभ होइतो गोटे व्हाट रु आरंभ होइतो ए दुई प्रकार को हमें एठी सिखिबा बर्तमान दुईटी सेंटेंस देख गोटे होजे ही इज वेरी स्टूपिड आ गोटे ही इज ए very stupid boy हम कौन तफात देखु what is the difference between these two types of a sentence in this sentence he is very stupid but in the second sentence there is a and stupid पर boy रही जेतोल देखिबा गोटे एडजेक्टिव पर गोटे नाउन थिबो किंबा सेंटेंस रे ए थिबो सेते बेले हमें ताकू व्हाट रु आरंभ करबा आउ ए जदि नथिबो किंबा ए एडजेक्टिव पर किछि नाउन जदि नथिबो तमे हमें हाउ रु आरंभ करबा एबे देखो व्हाट ए आ वेरी रहिबनी वेरी पई हमें तो ताकू एक्सक्लेमेटरी करछे तेनु वेरी थिले ही एक्सक्लेमेटरी है आ वेरी रहिबनी व्हाट ए stupid boy तापर he is एटी सान रहइबो he is he कल क्वेश्चन हे जबो तणु he is हबो एटी से बेली how very रहइबनी how stupid he is एटी विस्मय सूचक चिन्ह दिया गला ठीक से बेले जदि हाउ स्टूपिड ही इज दिया हितबो ताकू हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस रे ही इज वेरी स्टूपिड करबा जदि व्हाट ए स्टूपिड बॉय ही इज को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस करिया को पड़े त हमें ई बेले करबा ही इज ए वेरी स्टूपिड बॉय तो स्टूडेंट्स I hope
you will enjoy this video. And if you have any questions, please give me comments in the comment section. Ask any questions, I will make you clear. I will make all your doubts clear in the next video. And hope you enjoy this, and see you in the next video. Till then, bye.